Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th. Subject is English reader. Beta, in the previous video we have completed half part of book exercise of chapter 1st. Remaining exercise we will do in this video. Okay? So get ready quick. Let's start. See, in the previous video I have given work to you, homework to you. I hope you have completed it. आप लोगों ने complete कर लिया होगा. Next, come on the next page. See बेटा, sound sense. Listen to how these words are said. Pay attention to the letters that are in color. ये कलर में जो आपको लेटर्स दिए हुए हैं इनको आप ध्यान से सुनेंगे. तो it is rough, it is high. See, in the rough, the letters GH have a F sound. यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था rough. GH की कैसी साउंड आ रही है? F. F की साउंड आ रही है. But in high, the letters GH are silent. लेकिन जो high है उसमें letters GH क्या है? Silent हैं. Circle the words that have a silent GH. Silent GH है उनमें वो हमें सर्कल करना है. लिसन एंड चेक. ओके, सो ब्राइट, देर इज GH साइलेंट. प्लो, GH इज साइलेंट. लाफ्टर, साउंड F. नेबर, GH इज साइलेंट. GH लेटर्स आर साइलेंट. दैट इज थ्रॉफ, तो it is GH are pronounced. Okay, F. Enough, F. Haughty. Draft, F की साउंड आ रही है. Fought, no sound. Bought, no sound. Now turn the page. Here in grammar portion, go grammar. Grammar का portion दिया हुआ है आपको. Many, some, any. Read the sentences. Many powerful men lived and worked in the castle. Many important people visited it. Stones have fallen from the walls and there isn't any sign of the roof anymore. The soldiers inside the castle heard some noise. Many, some and any. Help us talk about quantities. Quantities की यानी quantities बताने में यानी मात्रा बताने में हेल्प करती हैं हमारी. ठीक है. We use some और any. Some और any को हम यूज करते हैं with both countable and uncountable noun. सम और एनी को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं. सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस. सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस, ओके, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं सम को. ओके बेटा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. आई हैड सम राइस विद दाल. सम बॉयज क्रिएटेड ट्रबल. नेक्स्ट, we also use some to talk about offers or when we ask for something from someone. हम some का यूज कोई ऑफर किसी को देते हैं उसके लिए भी, या फिर हम किसी से कुछ पूछते हैं तब भी हम किसी के बारे में किसी से कुछ पूछते हैं तब भी हम some का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, would you like to drink some water? ऑफर, क्या तुम थोड़ा सा पानी पीना चाहोगे? कैन आई हैव सम राइस प्लीज? क्या मुझे थोड़े से राइस और मिल सकते हैं? एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स. एनी नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज किया जाता है. एंड क्वेश्चंस एज वेल, और जिसमें क्वेश्चन होता है उसमें भी हम यूज किया जाता है. एग्जाम्पल्स, डू यू हैव एनी जूस इन द फ्रिज? क्या फ्रिज में आपके पास थोड़ा जूस है? I don't have any money in my wallet. मेरे वॉलेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है. We use many with
काउंटेबल नाउन्स, मैनी को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वी यूज मैनी विथ काउंटेबल नाउन. मैनी को काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. मैनी पीपल विजिट द चर्च ऑन संडेज. वी डू नॉट हैव मैनी बुक्स ऑन हिस्ट्री. तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको सम और एनी करेक्ट यूज करना है. तो मदर हैज जस्ट मेड सम टी. क्या आएगा? सम टी. तो अपन तो टिक नहीं करेंगे, फिल कर लेते हैं. SOME, सम. दिस प्लेस यूज्ड टू बी वेरी बिजी. मैनी people used to live here, but these days you will not find any नहीं आएगा, any आएगा. Any crowd there, it is completely empty. Okay, next. Would you like coffee? Would you like any coffee? क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे? Is there any food left for me? Any. How many people come for your birthday party? How many? How many people came for your birthday party? Came है ये, CAME, came. COME कम होता है. Not, but it was fun party. But it was fun party. Not many, वो ज्यादा नहीं आए. Not many, but it was fun party. Now, a little and a few. Expressions like a little and a few are also used to talk about quantities. A few और a little भी क्वांटिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं. देखिए, a little means some but not much. ध्यान से सुनेंगे. a little का मतलब होता है कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, है ना. we use it with uncountable noun. किसके साथ यूज करते हैं हम इसे? uncountable noun के साथ हम यूज करते हैं. क्या बेटा? a little. a little का मतलब होता है कुछ, लेकिन not मच, है ना, बहुत ज्यादा नहीं. और इसे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. आई हैव गॉट अ लिटिल टाइम. थोड़ा सा टाइम. आई विल रिवाइज माई प्रोजेक्ट वंस अगेन. थोड़ा सा टाइम मिला, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम मिला, मैं अपना प्रोजेक्ट रिवाइज कर लूंगा. अ फ्यू मीन्स सम बट नॉट मैनी. मच और मैनी में डिफरेंट है, यहां पर ध्यान से देखेंगे. A few का मतलब क्या होता है? Some but not many. We use it with plural countable noun. It is uncountable noun. यहाँ हम a little को uncountable noun के साथ यूज करते हैं, ठीक है. और a few को बेटा plural countable nouns. A few को plural countable nouns. ध्यान से सुनेंगे. A few students, देखिए plural है और countable है. A few students had not completed their class work. और यहां देखिए, I have got a little time. टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है. ओके, अनकाउंटेबल है. और यहां पर काउंटेबल प्लूरल है. नाउ टर्न द पेज. सी, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद अ फ्यू एंड अ लिटिल. अ फ्यू और अ लिटिल के साथ हमको ये फिल करना है. तो देखिए, द रॉकेट रीच टॉप स्पीड इन मिनट्स. बेटा सम आएगा यहां पर. क्या आएगा? सम आएगा. सम नहीं आएगा बेटा, बाय मिस्टेक आई हैव फिल्ड इट. अ फ्यू और लिटिल में से फिल करना है ना. सम तो आएगा ही नहीं, दो हमें दिए हुए हैं. अ फ्यू और अ लिटिल में से फिल करना है. ओके, सम से फिल नहीं करना. तो क्या आएगा? अ फ्यू मिनट्स. काउंटेबल नहीं है ना, तो अ फ्यू मिनट्स. ओके, काउंटेबल है ना. मिनट्स, फ्यू मिनट्स है ना. मिनट्स कुछ मिनट्स होंगी, तो ये काउंटेबल है. अनकाउंटेबल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? अ लिटिल. ओके, देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको.
अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल, ये देखिए अनकाउंटेबल अ लिटिल, और काउंटेबल के साथ अ फ्यू। ओके, तो देखिए अ फ्यू मिनट्स, मिनट्स काउंटेबल है ना, मिनट्स को अपन काउंट कर सकते हैं। अ फ्यू मिनट्स। कैन आई हैव अ लिटिल more salt in my soup, तो a little, salt countable नहीं है तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल है, लिटिल, a little। he asked me questions and then let me go, तो he asked me a few, countable है questions, a few। okay, I still have to pack in more clothes, I will be ready after that। क्या आएगा इसमें, a few, more clothes countable है। next, she has money left, she wants to buy me gift with it, तो she has a little, a little का मतलब होता है थोड़ा सा, ओके, बट नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट F, in while the train will leave, a little और a few fill करना है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, देखिए कॉन्क्रीट नाउन आप जानते हो सभी, कई बार मैं बता चुकी हूं, नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पीपल एनिमल्स प्लेसेस थिंग्स एंड आइडियाज। ओके, ये नाउन होते हैं। ऑल नाउन्स फॉल इनटू 1 और 2 कैटेगरीज, सारे जो नाउन होते हैं वो 1 और 2 कैटेगरीज में आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी परसीव्ड बाय एनी वन ऑफ द 5 सेंसेज, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। यानी कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा 5 बॉडी सेंसेज से फील किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, वो होते हैं 5 बॉडी, वो होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। क्या होते हैं बेटा, वो कॉन्क्रीट नाउन्स। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देयर आर नो विंडोज, हम देख सकते हैं कोई भी विंडोज नहीं है, विंडोज क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। द सोल्जर्स इनसाइड द कैसल हर्ड सम नॉइज, अब नॉइज क्या है यहाँ पर, नॉइज हम सुनेंगे, इसे भी है ना, सुन सकते हैं ना आवाज को, हमारा जो ईयर है उससे हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो 5 बॉडी सेंसेस हम यूज कर रहे हैं, सुन सकते हैं इसको, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। देखो इन द फर्स्ट सेंटेंस द नाउन विंडोज इज अ कॉन्क्रीट नाउन, यू कैन टच इट और सी इट, आप विंडोज को देख सकते हो, है ना, टच भी कर सकते हो। इन द सेकेंड सेंटेंस द नाउन नॉइज इज ऑल्सो कॉन्क्रीट, ये भी कॉन्क्रीट नाउन है, क्यों, बिकॉज इट कैन बी हर्ड, इसे सुना जा सकता है। तो जिनसे हम किसी चीज को टच कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं, किसी चीज को सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, कॉन्क्रीट नाउन होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट द 5 फिजिकल सेंसेस कैन नॉट परसीव, जिनको हम अपने 5 बॉडी सेंसेस के द्वारा नहीं समझे जा सकते, वो यू कांट सी, उन्हें हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, और उन्हें हम टच भी नहीं कर सकते। दे रिप्रेजेंट अ क्वालिटी, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अ क्वालिटी, अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया, एन इवेंट। ये तो देखिए हम क्वालिटी को भी टच नहीं कर सकते, है ना, देख भी नहीं सकते कि कैसी है क्वालिटी, है ना, केवल और केवल उसे फील कर सकते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, द अटैकर्स फेस्ड अ क्रशिंग डिफीट, हार, इसे हम क्या है, डिफीट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज
इट कैन नॉट बी सीन। हार को हम देख नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते और इसे स्मेल भी नहीं कर सकते। रीड द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन द कॉन्क्रीट नाउन। ध्यान से सुनेंगे, कॉन्क्रीट नाउन को अंडरलाइन करना है और सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करना है। तो देखिए पहले हम कॉन्क्रीट नाउन अंडरलाइन करेंगे। द जज क्वेश्चन द trustworthiness of witness who did not show up in court। अब हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए बेटा ट्रस्टवर्दीनेस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मैंने सर्कल कर दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और अंडरलाइन कर दिया किसको बेटा, कॉन्क्रीट नाउन को। तो देखिए समर कॉन्क्रीट नाउन है, इज अ बॉय कॉन्क्रीट नाउन है, इंटेलिजेंस कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुड। डॉग्स डिस्प्ले लॉयल्टी टुवार्ड्स दियर मास्टर्स, ये कॉन्क्रीट नाउन है, लॉयल्टी बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, द बॉय वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज करेज, करेज क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है, सॉरी करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अवार्ड कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ही ड्रॉप्ड हिज फोन, फोन बेटा कॉन्क्रीट नाउन है, विद अ क्रश, क्रश क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट मनी कॉन्क्रीट नाउन, सेज दैट हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, रिचा wears too much perfume, the little child spilled juice on the laptop, ये spilled तो verb है, the little child ये क्या है बेटा, child noun है, juice on the laptop। So this exercise is finished and this chapter is also finished. In the next video, we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.